Okay, today our topic is reproduction in flowering plants. Flowering plants. As far as reproduction is concerned, can you explain me what do you mean by reproduction? Can anyone tell me? Okay, I will tell you. Reproduction is the process through which an individual increases their number by their numbers. Okay. As far as the types of reproduction is concerned, types of reproduction is concerned, they are of two types. Number one, asexual reproduction, and the second one is the sexual reproduction. Okay. Now let's have a brief look on the asexual and sexual reproduction, that what are they. मतलब इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, बस एक जिसे कहते हैं ना कि सरसरी सा जिसे कहते हैं कि इंट्रोडक्शन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन द asexual reproduction. Now asexual reproduction is a type of reproduction in which no gametes are involved. That means that no gamete, that means no segregation of the chromatin is involved. Okay, and do not involve the fertilization. Do not involve fertilization, that is fusion of gametes. On the other hand, only need one individual to proceed or increase the number. For example, when we talk about the examples of asexual reproduction, there are so many examples of asexual reproduction. And apart from this, asexual reproduction is also known as the vegetative propagation. Another name of asexual reproduction is vegetative propagation. Vegetative propagation. Vegetative propagation means that means division of cells or reproduction of cells of individuals, from any part of the body. Part of the body, except sexual organs. अच्छा, मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि एक्सेप्ट सेक्सुअल ऑर्गन्स, बिकॉज इन प्लांट्स
There are so many plants that can reproduce asexually as well as sexually. That means they can reproduce from their vegetative parts as well as they can reproduce from their sexual parts by doing the sexual reproduction. Okay, so that's why I am writing these two things. Now, as far as the asexual reproduction types are concerned, जो भी टाइप्स हैं उसके अंदर जो प्लांट्स में जो टाइप्स आती है उसके अंदर हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन की दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल प्रोपगेशन और एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल प्रोपगेशन वो जो कि एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट्स खुद से जो है अपने आप को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कोई मैन इन्वॉल्वमेंट या किसी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। प्लांट्स खुद से जो है अपने आप को जिसे कहा जाए सस्टेनेंस बढ़ाने के लिए करते हैं। उसमें राइजोम होती है, कॉम्स होती हैं, ट्यूबर्स हैं, बल्ब है। राइजोम की बेस्ट एग्जांपल जो है वो जिंजर है। कॉम्स की बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपके पास अरबी है, जिसे कहा जाए कि कतक सिंघाड़े जो होते हैं वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। फिर इसके अलावा ट्यूबर्स जो है उसके अंदर आपके पास जो है पोटैटो जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है स्टेम ट्यूबर की, और बल्ब्स के अंदर आपके पास गार्लिक और अनियंस है। ठीक है, as far as artificial propagation is concerned, it's totally involved in man-made interference. These are the man-made and they totally involve the interference of the man. ठीक है, और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं और चंद जो है वो ये हैं जिसमें लेयरिंग है, मार्केटिंग है, बडिंग है, इंटरकिंग है. As it is not involved in the course of the CI or include in the course of the CI, that's why we are not going there for the details. Now the types of cell division. थोड़ा सा इसके ऊपर भी देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन कितने ही तरह की होती है. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, mitosis and the second one is the meiosis. In case of mitosis, we also consider them as a this type of cell division is for the vegetative propagation. Vegetative propagation और asexual reproduction में भी इन्वॉल्व होती है. asexual reproduction के अंदर भी इन्वॉल्व होती है. Apart from this, mitosis is the normal body growth. जो नॉर्मल बॉडी ग्रोथ होती है और मेंटेनेंस होती है उसमें भी इन्वॉल्व होती है, उसका एक पार्ट है. हर ह्यूमन बॉडी, हर प्लांट बॉडी, हर लिविंग बॉडी के अंदर हो रही होती है. Now, as far as meiosis is concerned, meiosis is only a type of cellular division that only involves the sexual reproduction. Sexual reproduction means that is it only involves the gamete formation. Gamete formation. Okay, gamete formation एक तो ये है and it only takes place in the sexual organs. तो माइटोसिस, अच्छा माइटोसिस के अंदर बेसिकली क्या होता है? सपोज दिस इज अ पेरेंट सेल. थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं. I'm making the nucleus big in order to make you people understand. Suppose इसके अंदर 4 क्रोमेटिन है, ठीक है. When it undergoes to the mitosis, then what will happen? It starts doubling its chromatin numbers. न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा बना रही है, फिर दोबारा बता रही हूँ, इतना बड़ा होता नहीं है लेकिन बना रही है. 1 2 3 4
Now they form their duplicate. 1, 2, 3 and 4. Okay, now how many there are? There are total 4 chromatins attached, 4 chromosomes and 8 chromatins attached to each other. Each pair is attached. Okay, अब मजीद जब ये आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट में क्या होगा? ये डिसॉल्व हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड स्पिंडल फाइबर बनेंगे. इसमें बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं लेकिन वो नहीं बता रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए. 2, 3, 4. ठीक है. अच्छा, और ये जो है ना, ये जो क्रोमेटिन्स है, दे गेट लाइंड अप इन सच अ वे. 1, 2, 3, 4 और इसी का जो पेयर्ड होगा वो भी इसके साथ 1, 2, 3, 4. एज दे आर ज्वाइंड विद ईच अदर, तो इस स्टेप में ये अलग नहीं होंगे, लेकिन ये जो है एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए हुए यहाँ पे मौजूद होंगे. नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, तो थोड़ा बड़ा करके बता देती हूँ. ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स आई थिंक से तुम लोगों को पता लग गया होगा. इनके साथ अटैच हो जाएंगे कंप्लीटली और इनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे. ठीक है, एक तरह से जैसे जबरदस्ती खींच के पीछे की तरफ ले जाना शुरू कर देंगे. ठीक है, ये अपने अपने पोल्स पे चले जाएंगे. और अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप के अंदर तो अलग अलग इनके गिर्द सेल मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाएंगी एंड ये सारा स्ट्रक्चर जो कि घसीट के ले जाया जा चुका होगा ये सब गायब हो जाएगा. और अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर बना दूं तो 2 डिफरेंट न्यूक्लियस जो होंगे वो बन चुके होंगे. डॉटर न्यूक्लियसिस, डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर सेल्स बन चुके होंगे और एक इसमें 4 क्रोमेटिन और इसमें भी 4 क्रोमेटिन आ चुके हैं. So what happens? In the start, 2n number of chromatins are there. In the end, the 2 daughter cells also has got the same number of chromatins. So that's called the mitosis, the division of the cell in which the number of chromatins remain same as that of the parent cell. ये है parent cell. Parent cell जब ये division के अंदर गया है, इसने दिए daughter cells. Daughter cell. अच्छा, in mitosis, one parent cell gives 2 daughter cells. ठीक है, one cell gives 2 daughter cells. Only 2 daughter cells, not more than 2. But in meiosis, one cell gives 4 daughter cells. ठीक है, how? Let's see. Okay, now meiosis. अच्छा, सबसे पहली बात तो ये only takes place in sexual organ. In sexual organs are used for gamete formation. Gamete formation.
ओके, यहाँ पे लिखना इसलिए जरूरत है कि बच्चे बार दफा कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट्स व्हाई. नाउ व्हाट हैपन इन meiosis? It has got two steps. Okay, meiosis 1 and meiosis 2. First of all, meiosis 1. meiosis 1 में क्या होगा, सेम वही माइटोसिस वाला जो पार्ट होता है वही वाला होगा. एक सेल है, ये अपने आप को डुप्लीकेट करेगा. एट में आएगा, कन्वर्ट होगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, इससे दो सेल बन जाएंगे, टू डॉटर सेल बन जाएंगे. ओके, ये मियोसिस 1 हो गया. अब मियोसिस 2 में क्या होगा, नाउ इन मियोसिस 2 we take the two daughter cells that is formed in the meiosis 1. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. अब इस स्टेप के अंदर क्या होगा, इस स्टेप में कुछ डुप्लीकेशन नहीं होगी, ये सेल टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे. कैसे, और छोटे छोटे दो न्यू डॉटर सेल्स जो होंगे वो दे देंगे, और वो होंगे हैप्लॉइड. दैट मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिन्स होंगे उसके अंदर. इसमें 4 थे तो इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें इधर से बाकी जो 2 होंगे वो इसमें आ जाएंगे. ठीक है, ये कितने नंबर थे, 2n थे, डबल थे, डिप्लॉइड थे. नाउ दे बिकम हैप्लॉइड. इसी तरीके से ये वाले जो हैं, ये भी जब दो हिस्सों में तकसीम होंगे, सिंपल इक्वल टू हाफ्स के अंदर, नो डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस, नथिंग, सिंपल. Oh, sorry, I made 4. Yes, 2 and then 2. See, 2n, n and then n. So from one parent cell, जो कि हमने पिछले स्टेप में मियोसिस 1 में देखा था कि एक पेरेंट सेल जो था जिसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमेटिन्स थे, 4 थे, उससे टोटल कितने सेल्स बन रहे हैं, 4 सेल्स बन रहे हैं. 1, 2, 3 और ये 4. अब अगर फर्स्ट करो कि ये टेस्टिकल्स में बन रहे हैं या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बन रहे हैं तो दे बिकम स्पर्म. और अगर फर्स्ट करो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी ओवरी के अंदर बन रहे हैं तो दे बिकम ओव्यूल, दैट मींस नॉन मोटाइल. और इसी तरीके से अगर वो प्लांट के अंदर बन रहे हैं और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर बन रहे हैं प्लांट के, तो दे बिकम पोलन ग्रेन. और अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर बन रहे हैं तो फिर ये दे बिकम दी एग. ओके, एग और ओवम. अगर ये पोलन ग्रेन बन रहे हैं तो ये कैसे हो जाएंगे, ब्रिंकल से और वट एवर जो भी इनके फिजिकल फीचर्स होंगे वो इस तरह इनके ऊपर आ जाएंगे, बट द जेनेटिक मेकअप वही हैप्लॉइड ही रहेगा. ओके, सो दैट्स हाउ दे आर फॉर्मिंग इन दी सेक्सुअल ऑर्गन्स. नाउ द sexual
reproduction in flowering plants. Reproduction in flowering plants. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि what are the sexual parts or organs in the plant? Sexual organs in plants. Basically, these are the flowers. Okay, these are the flowers. Flowers are the sexual organs in the plants. Now the types of flowers. Types of flowers. Flowers are basically on the basis of their sexes. They are of two types. Unisexual and bisexual. Unisexual flowers may be monoecious or dioecious. Whereas bisexual flowers are also called the hermaphrodite. Okay. Now let's have a look on the unisexual flower first. Unisexual flowers. ये बाइसेक्सुअल का क्या मतलब होता है? आई एम टेलिंग यू, अभी बताती हूँ, पहले यूनिसेक्सुअल देख लो. फ्लावर that either contain male reproductive organ or a female reproductive organ. And as far as the unisexual flowers are concerned, they are basically of on the basis of their reproductive organ of two types. Number one, male flower or female flower. That is that male flower are those flowers that contains male reproductive organ, and female flower are those flowers that contain female reproductive organ. And what are the shapes of the male reproductive organs and female reproductive organs? When I am going to make the general structure of the flower, you can easily understand. Okay. Now, as far as the location of the unisexual flowers are concerned, they may be monoecious or dioecious. Okay. That means here, in case of a unisexual flowers, the plant may contain only the male flower or only the female flower, or the same plant contain both the male and female flower. Okay. Yes, teacher. As far as the unisexual flowers location is concerned, they may be on the monoecious plant. That means only male or female flower, present
ऑन अ प्लांट, ठीक है, या तो मेल होगा फ्लावर या फीमेल फ्लावर होगा उस प्लांट के ऊपर। एग्जाम्पल डेट डेट ट्रीज, खजूर के जो दरख्त होते हैं, इसमें मेल और फीमेल प्लांट टोटली डिफरेंट होता है, अलग होता है। लाइक पपाया, पपाया जो होता है उसमें मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। मेल प्लांट पे मेल फ्लावर्स होते हैं, फीमेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर्स होते हैं। नाउ as far as dioecious is concerned, dioecious plants or flowers both male and female flowers are present on a same plant. Best example is maize plant. Maize plant, ठीक है, जो मकई का पौधा होता है, मकई का जो पौधा होता है उसके ऊपर दोनों तरह के जो फ्लावर्स होते हैं, मेल और फीमेल एक ही टाइप के जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, अब इसमें बेस्ट एग्जांपल हमारे पास मेज प्लांट की है और इसमें बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ट्री और डेट ट्री और पपाया की है। ओके, इसमें ये होता है कि सेपरेट फ्लावर्स होते हैं सेपरेट प्लांट्स के ऊपर। इसमें ये होता है डायशियस के अंदर ये होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग तो होते हैं लेकिन एक ही प्लांट के ऊपर मौजूद होते हैं। ओके, now these are the parts, this is the diagram of the flower or common flower, hermaphrodite flower. Okay, and now let's have some discussion and some labeling of that flower, ठीक है। अच्छा जनाब, ये जो है ये तो है पेटल, ठीक है, these small greens are sepals, this one is the stalk or pedicle। अच्छा, this one is the ovary, inside it the dark purple is the ovule, and this one is the style, and this one is the stigma, this one is the filament, and this one is the anther। Okay, acha, now in this whole flower parts, first the male part, इससे पहले ये देख लेते हैं कि मेल पार्ट कौन सा वाला है। आई एम ड्राइंग इट सेपरेटली, ठीक है, so you can easily understand। The male part is collectively known as stamens. It has got the capacity to synthesize the gametes, that is the male gametes. This is the general structure of the stamen। ओके, ये स्टेमन का स्ट्रक्चर है। ओके, अच्छा इसको, इसका नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे, स्टेमन called the male reproductive part or male part, and this one is the anther where the meiosis takes place, and this one is the filament। Filament is only for the support, only for the support, anther meiosis occur।
यहाँ पे मियोसिस हो रहा होता है और इसके अंदर बन क्या रहे होते हैं, गैमीट्स। और गैमीट्स का नाम क्या है, पोलन ग्रेन्स। ओके, अभी सिर्फ इतना ही बताऊंगी इसके लिए। This one is the male part and it is present in the flower. ये रहा। Okay. Now the female reproductive part. Now the female part or female reproductive part. इनफैक्ट इसको थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं ताकि इसकी लेबलिंग्स भी कर लें साथ। ये हॉलो ट्यूब होती है, जबकि फिलामेंट की ट्यूब जो होती है वो फिल्ड होती है। दैट मीन्स वो जिसे कहते हैं ना, अंदर से हॉलो नहीं होती है, उसमें सेल्यूलोज भरा हुआ होता है। बट दिस वन इज दी हॉलो वन, क्योंकि इसमें से पोलर ट्यूब को पास होना होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, this is the basic structure of the female reproductive organ. अच्छा, इसको थोड़ा सा और मुझे बेटा ऊपर करना पड़ेगा बिकॉज ये जो है ना, इट नीड्स मोर डिटेल। आई नीड टू गिव यू मोर डिटेल अबाउट दिस। दैट्स वाई मैं जो स्टाइल जो है वो थोड़ा सा छोटा बना रही हूँ और फिर ओवरी जो है वो थोड़ी मैंने बड़ी कर दी है ताकि इसकी डिटेल्स जो है वो भी बता दूँ सर। इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू पीपल। अच्छा, और इसके अंदर जो होता है आपका ओवम होता है, एग होता है और इसी के साथ ही यहाँ से ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल की। इसको हम मजीद डिटेल में भी पढ़ेंगे बट अभी फिलहाल इतना ही सही। ओके, अच्छा, अब इसकी लेबलिंग जो है वो भी देख लेते हैं। टॉप मोस्ट इज द स्टिग्मा, दैट इज स्टिकी स्ट्रक्चर, स्टाइल, hollow, tube like structure. This one is the ovary and inside portion is the ovule. अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है इट नीड्स मोर डिटेल, वन मोर डिटेल लेक्चर एंड दिस विल गिव यू, आई विल गिव यू इन दी क्लास वेयर द फर्टिलाइजेशन टॉपिक इज गोइंग ऑन, विल बी गोइंग ऑन ना। तो वो वहाँ पे जो टॉपिक जब चलेगा तो उसके अंदर ओव्यूल का जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो जो है वो भी बता देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये जो ओपनिंग है दैट्स कॉल्ड दी फनिकल। अभी फिलहाल इतना ही, जो सिंपल सिंपल जिसे कहते हैं ना कि लेबलिंग्स है वो देख लो। अच्छा, and this whole structure is the structure of female reproductive organ and even this ovary is actually here. Okay, and this is the ovary wall. This whole structure is collectively known as pistil. This whole female part is productive part is called the pistil. अच्छा,
अच्छा, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने बताया था, ये बेसिकली फ्लावर में कहाँ पे, ये रहा पर्पल कलर का, ठीक है। अच्छा, नाउ द सेपल्स एंड पेटल्स। पेटल्स colored, scented, broad. If flower needs vector for pollination. If not, then there is no need of colored, scented, and broad petals. Okay. As far as the sepals are concerned, another part, they are for the protection of the ovary and overall the reproductive part, that is the flower. Okay. So as far as the sepals are concerned, they are small, give protection to the whole flower, especially ovary, whole flower and ovary. Okay. As far as stalk is concerned, for support and providing nutrients through vascular bundles. वीवी लिख रही हूँ, वेस्कुलर बंडल्स आ रहे हैं, यहीं से जाइलम फ्लोएम जो होंगे वो इसके अंदर आएंगे, तो ओवरी को शुगर्स और वाटर और ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे ना, प्लांट्स लाला के लीफ से देंगे इसको, जिससे ओवरी का साइज बढ़ेगा, सीड्स जो होंगे वो जर्मिनेशन के लिए रेडी होंगे, मतलब मेच्योर होंगे इसके अंदर, और फिर उसके बाद जब हम इनको जैसे कहते हैं कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो दे विल गेट रेडी फॉर दैट थिंग टू. Okay, today our topic is about reproduction in flowering plants, and today our topic is about the structure of pollen grain and the structure of ovum. Structure of pollen grain. First of all, okay, structure of the pollen grain. अच्छा, pollen grain का स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते थे pollen grain का फॉर्म, थोड़ा सा रिवीजन और उसकी मैच्योरिटी. Okay, pollen grain are formed inside the male reproductive organ that is called the stamens. ठीक है, तो stamens male reproductive organ है, male reproductive organ. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. It has got on the top stamens that contain pollen sac, and inside it the pollen grains are present, and they are attached with the stick like or projection like structure. एक फिलामेंट से जो है ये अटैच होता है. मल्टीपल टाइप्स के जो है ना वो स्टेमन्स होते हैं, और उसको मल्टीपल टाइप्स के जो है जिसे कहा जाए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या दैट मींस एंथर्स आर अटैच्ड. ठीक है. अच्छा, अब अगर मैं इसकी लेबलिंग देखूं तो ये हमारे पास आ गया एंथर, और ये है हमारे पास फिलामेंट. ओके. ओके. अच्छा, एंथर का जहाँ तक ताल्लुक है, हम इसको जरा सा मैग्नीफाई करके और बड़ा करके देख लेते हैं. When we look at the anther in a magnified form, we have seen that
These are sac-like structures, and usually they are called the pollen sac. They are in the form of pair of 2 or pair of 4, depend upon the type and the species of the flower. ठीक है, और इसके साथ नीचे जो है वही फिलामेंट जो होता है वो अटैच हुआ है. Okay, and this part is called the pollen sac. Anther part is also called the pollen sacs, in which inside the pollen grain are present or synthesized. Pollen sac. Okay, and they contain pollen grain. Pollen grain. पोलन ग्रेन सिंथेसाइज कैसे हो रहा होता है? मियोसिस की वजह से. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है? मियोसिस. Cellular division in which the gametes are formed. Pollen grain are also called the male gamete. Right? Okay. अच्छा, आप देखते हैं पोलन सैक के अंदर वो क्या रहा होता है. अच्छा देख, ओ चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा से. ठीक है, अगर मैं इसको सेंटर में से इसका पीएस कट करूं तो कुछ ये ऐसा नजर आएगा. पोलन सैक जो होगी वो कुछ इस तरह की नजर आएगी. ओके, अच्छा, इसके अंदर जो है बेसिकली मियोसिस हो रहा होगा सैक के अंदर. How? By the process of alteration of generation. Okay, how the alteration of generation takes place? यहाँ पे अंदर पोलन सैक के अंदर क्या होगा? Alteration of generation. Alteration of generation. Okay. In alteration of generation, what happens that जो पोलन सैक की जो बॉल है, इनसाइड बॉल जो है, पोलन सैक inside wall have mitotically dividing cells. ठीक है, नॉर्मली जो इसकी ग्रोथ को मेंटेन कर रहे होते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा होता है? माइटोसिस हो रहा होता है. They carry out the mitosis. As soon as they want to form the gametes, ठीक है, जैसे ही इनको गैमीट फॉर्म करने होते हैं, दिस माइटोसिस undergoes to meiosis. इसमें चला जाएगा, meiosis के अंदर चला जाएगा. That means cell that were dividing, in other words, that were dividing mitotically, please mute your mic. Dividing mitotically undergoes meiotic division to form pollen grain. और gametes. ठीक है, होगा क्या कि जो है ना, यहाँ पे जो मियोसिस स्टार्ट होगा वो जस्ट बिकॉज ऑफ द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, कि इसके जो आउटर लाइन के जो सेल्स होंगे, जो इसकी पोलन सैक की इनसाइड सेल वॉल के अंदर मौजूद होंगे, इधर की तरफ किनारों के ऊपर, वो अपना माइटोटिकली डिवीजन का जो एक पैटर्न है उसको छोड़ के मियोटिकली जो है वो डिवाइड होने लग जाएंगे और वो हैप्लॉइड सेल्स बनाना शुरू कर देंगे.
So on the division side, inside the sac, haploid gametes. Gametes are found that are called the pollen grains. As soon as the maturity comes, these pollen grains get exposed. Now on maturity, what happens? This pollen sac is going to be opened. How it gets opened? Let's have a look. As we know that inside it, so many pollen grains are there and they get matured. So what will happen? That pollen sac, the cracks are going to be appeared on the pollen sac. Okay? Due to the dryness. These cracks then opens up the pollen sac. ठीक है, ये जो क्रैक होंगे ये पोलन सैक को ओपन कर देंगे. ओके, और जैसे कहा जाए कि नेक्स्ट जो स्टेप होगा, क्रैक्स इन पोलन सैक. एक्सपोजिंग पोलन ग्रेन. ठीक है, इसमें पोलन ग्रेन जो होंगे वो एक्सपोज होते हुए छोटे 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 अंदर उस क्रैक में से झांक रहे होंगे, नजर आ रहे होंगे. ठीक है, अब ये टाइम है कि ये पूरे एक्सपोज हो जाए. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इट गेट्स ओपन like this. The flaps are going to be open. Understand? और इसके ऊपर जो है बहुत सारे billions and billions of pollen grains like dust particles exposed on. And now the male gametes are ready to fuse with the female gametes and do the fertilization for the formation of the seeds and the fruits for the new offspring in the generation. Okay. ये इतने डस्टी होते हैं कि दैट मीन्स दे आल्सो मूव रैंडमिंग हियर एंड देयर. जरा सी हवा आती है और ये उड़ने लग जाते हैं. ओके, सो दीज आर द एक्सपोज्ड mature pollen grains. Okay, now the internal structure of pollen grain. Internal structure of the pollen grain. ठीक है. अच्छा, पोलन ग्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. This is in time. This is exine, has double layer structure, outer cell wall and inner cell membrane. This pink color structure is called the exine and it is purely made up of cellulose, and it's basically the cell wall structure of the pollen grain. Inside it, there are two nuclei.
and lots of cytoplasm. Lots and lots of cytoplasm. This one is the exine cell wall, cellulose से बनी हुई होती है. This one is the intine, that is cell membrane. Okay. This one is liquid filled, that liquid is called the cytoplasm. और cytoplasm का content इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत थोड़ा सा होता है. There are two nucleus in mature pollen grain. One is vegetative nucleus and another one is the generative nucleus. This one is the vegetative nucleus. Vegetative nucleus. And this one is the generative nucleus. Generative nucleus. Okay. Acha, as far as the generative and vegetative nucleus are concerned, when the division of the cell is going to be done or the pollen tube is going to be done, this pollen grain has the capacity and capability to form the pollen tube. ठीक है, जब ये स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ. तो उसमें क्या होता है कि पोलन ट्यूब बननी शुरू होती है इस तरह करके ना, इंटाइन से, इंटरनल जो सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है. और जो एक्साइन होती है वो एज इट इज इसके ऊपर रहती है. सिर्फ वो वाला पोर्शन एक्साइन का जो होता है वो डिसॉल्व होता है, जिससे पोलन ट्यूब, जहाँ से पोलन ट्यूब बननी शुरू होती है. ठीक है. बाकी सारी जो एक्साइन होती है वो ऊपर की ऊपर रह जाती है. और दी प्रोटेक्शन, फर्दर प्रोटेक्शन, अब तो ये डेड हो जाता है थोड़ी देर के अंदर है ना. अच्छा, अब ये जो होती है ना, क्या कहते हैं, इसका जो जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो तो पीछे पीछे होता है, येलो कलर से बना रही हूँ. और जो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो जो होता है, जेनरेटिव न्यूक्लियस पीछे पीछे होता है, और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो आगे आगे होता है. ठीक है. वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होगा वो जिसे कहा जाए कि आगे आगे होगा. ठीक है. ये जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये पीछे रहेगा, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होगा वो आगे बढ़ेगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये पोलन ट्यूब बना रहा होता है. इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इसको और क्लियरली बताऊं तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, बेटा प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज म्यूट योर माइक. ठीक है. जो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा वो पोलन ट्यूब के बिल्कुल एज के ऊपर होगा, जबकि और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा वो बिल्कुल पोलन ट्यूब के एज के ऊपर होगा, जबकि जो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा वो इसको फॉलो अप कर रहा होगा. ठीक है. वो इसके पीछे पीछे जहां जहां रास्ता ही बनाता जा रहा होगा वहां वहां आता जा रहा होगा. ठीक है. दिस वन इज द वेजिटेटिव न्यूक्लियस. ठीक है. ये जो है ना, ये बेसिकली क्या फॉर्म करवाता जा रहा है, पोलन ट्यूब, जो कि पेनिट्रेट करेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर. और ये जो है ना, ये है हमारे पास जेनरेटिव न्यूक्लियस, जो कि जनरेशन प्रोड्यूस कराएगा. जेनरेटिव न्यूक्लियस, दैट मींस कि सीड और ओवरी, ओव्यूल, जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो बनाएंगे. यानी कि इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ माइटोसिस करवा रहा है, और इसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमेटिन्स मौजूद है. समझ आ गई? जाहिर है, जब इसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमेटिन्स मौजूद है, फुल क्रोमोसोमल सेट मौजूद है, यही वजह है कि ये जो है पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने की सलाहियत रखता है, जो कि पोलन ट्यूब बन रही है. जबकि जनरेटिव न्यूक्लियस जो है, ये जो है, ये बेसिकली हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, डबल फुल क्रोमेटिन है, ये हैप्लॉइड सेल है. ठीक है. दैट मीन्स के हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिन्स होते हैं, और ये बेसिकली जो है मियोटिक सेल है, ये माइटोटिक सेल है. यानी कि ये जो है, ये बेसिकली गैमेटिक सेल है, गैमीट है. समझ आ गई? ये गैमीट है, और ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इसको प्रोजेक्शन देने के लिए और इसको सपोर्ट देने के लिए मौजूद है, कि इसके लिए रास्ता प्रोवाइड करेगा. अदरवाइज इसका और दूसरा कोई काम नहीं है रिप्रोडक्शन के अंदर. असल में जो रिप्रोडक्शन में काम है वो है बेसिकली जनरेटिव न्यूक्लियस का. रिप्रोडक्शन के अंदर कौन से वाले का काम है? जनरेटिव का काम है.
ठीक है, इसका मैं नाम जो है GN यहाँ पे लिख देती हूँ। जनरेटिव न्यूक्लियस का जो काम है वो है रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। और ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है इसका कोई भी काम नहीं है रिप्रोडक्शन में। नो पार्ट टेक प्लेस इन द रिप्रोडक्शन एक्सेप्ट फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। अच्छा, इन अदर वर्ड्स generative nucleus is also called tube nucleus, sorry, reproductive nucleus, reproductive nucleus, ठीक है, इसको रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं, जबकि वेजिटेटिव न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। अदर वर्ड्स में वेजिटेटिव न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड द ट्यूब न्यूक्लियस, क्योंकि ट्यूब फॉर्म कर रहा होता है। ओके, क्योंकि ये बढ़ता चला जाता है, पोलन ट्यूब जो होती है वो बनती चली जाती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द ट्यूब न्यूक्लियस। और जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो बेसिकली रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होता है। दैट मींस इससे जितनी भी रिप्रोडक्शन होनी होती है, जो नया फूड फॉर्म होना होता है, सीड फॉर्म होना होता है, वो इसी की बदौलत फॉर्म होना होता है। Okay, now the female reproductive organ and its detailed structure. It's basically called the pistil, collectively called the pistil. इसके बहुत सारे नाम होते हैं, वो सारे लिख के बता दूंगी, और मेल रिप्रोडक्टिव के भी जो नाम होते हैं वो भी सारे लिख के बता दूंगी। अच्छा, इसके अंदर जो है एक थिक लेयर होती है, जिसे कहा जाए कि एक टिश्यू की जो है एक अच्छी खासी थिक और थिक लेयर होती है, जो कि ओव्यूल के बाहर होती है, एंड दैट्स वन इज कॉल्ड द प्लासेंटा। ये जो होती है